Ladies and gentlemen, joining us in the studio, the amazing, the incredible, the powerful हाशिर भाई. इतनी इज्जत मुझे आज तक नहीं मिली और ये जो था ना मैसेंजर पता नहीं क्या उठने वाला है कुछ. हाशिर भाई, thank you so much for coming on the podcast. थैंक यू सो मच. आपका क्या, आपने मुझे बुलाया. मैं आपकी पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत मजे की होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं बहुत, तो मैंने कहा करना चाहिए बॉय के साथ. यार, thank you so much. This is really cool for us that you're here. Welcome to On the Mic. Welcome to the On the Mic Studios and welcome to all of your fans into the On the Mic Thank Studios. you so much. यहाँ पे हम लोगों का एक ही मकसद है कि जितने लोगों से जितनी ज़्यादा हम बातें कर सकते हैं हम करेंगे. एंड हमने इससे पहले लॉयर्स को भी बुलाया रिसेंटली, हम लोगों ने एक विजुअल आर्टिस्ट को बुलाया, एंड नाउ we have the most powerful of them all. thank you so much. Bro, I met you through very happy chance. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत फिट एक्सपीरियंस था और तब से लेके अब तक आई बीन वेटिंग कि हम लोग ये पॉडकास्ट कर सके. आज हम लोग काफी ज्यादा बातें करेंगे इंशाल्लाह. जितनी बातें करनी है करवा लो, मैं बोलने के लिए. अच्छा, श्योर हो? हाँ, डन. देख लो. डन. I think then we're in for something really interesting. मैं पूरी रात बोलता रहूंगा. आज फिर बहुत I think spicy चीजें होने लगी हैं. But before we proceed to the rest of the video and watch this podcast, we're going to take a quick minute to hear from our sponsors, Fresh Start Ventures. Not all of us take a chance on ourselves and our ideas, and I want you to do that. Which is why I want to tell you about our amazing sponsor at Fresh Start Ventures. Fresh Start Ventures is a VC connector that started off as a blog, which now provides you everything you need for your startup, whether that be financial assistance, strategic help, or any other sort of mentorship that you require to get your idea to the next level. Fresh Start Ventures is also aligned with the Pakistan E-commerce Consortium, meaning they are the perfect people to go to in order to understand the vastly changing world that we live in when it comes to technology and e-commerce rapidly evolving every day. Fresh Start Ventures has helped a bunch of startups get from their ideation stage all the way to the top, where they've consolidated themselves as top-notch businesses who have won laurels and awards in the industry. If you truly believe in your idea and the only thing missing is support and some kind of financial backing in the long run, Fresh Start Ventures is your place to go, so please don't hesitate in reaching out to them today. Visit www.freshstart.pk or the link in our bio. And give your idea a fresh start. Let's get on with the video. And we're back. Before we start with the video, I also just want to plug these really cool hoodies from Wrestling Revolution Global, our partners, pro wrestling partners. इनके साथ हमने भी show किया, November Nitro, which is coming out at the end of November. Check it out and support Pakistani pro wrestling and support these wrestlers जो कसम से हाशिर भाई जान मारते हैं, बहुत मेहनत करते हैं these guys. अभी आपको मैंने 2-3 clips दिखाई हैं, आपने देखा है ladders, tables, chairs. ये पूरा show by the way on the mic पे आ रहा है. Go DM us on Instagram at onthemic_official. Book your hoodie right now. Support Pakistani Pro Wrestling. It's at an unbelievably low price. Link is in the bio. बहुत हो गया बहुत हो गए स्पॉन्सर्स और प्लग. हाशिर भाई, सबसे पहला सवाल, सबसे जरूरी सवाल, हर एक से मैं ये पूछना पसंद करता हूँ, आपसे पूछना पसंद करूंगा, आप कैसे हैं? आपका क्या हाल है और अभी जिंदगी कैसी है ब्रो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ. जिंदगी बस ठीक चल रही है, समझ तो गए होगे आप. लाइक अच्छी चल रही है, ठीक है ब्रो. हाशिर, मैं ऑब्वियसली आपके व्लॉग्स बहुत लोग देखते हैं, लाइक वेरी बिग व्यूअरशिप माशाल्लाह. यू आर वन ऑफ द टॉप व्लॉगर्स ऑफ पाकिस्तान. अल्लाह करे. नहीं, यू आर ब्रो. और ये जो पिस्सा है ना इंशाल्लाह इन लोगों को भी पता लगेगा, क्यों नहीं. and you know, it's the energy that you have, it's very infectious. The content you make is very wholesome. Like people always, I feel like, watch it to tune out from life, और वो बहुत like जो boring mundane life होती है, और you always present things in such a nice and happy way, bro. Vlogging कैसे शुरू हुई थी? I just want to start with that. Like what was the first step that you took towards going towards vlogging? यार शुरू में ना मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल शौक नहीं था. लाइक मुझे व्लॉगिंग का बेसिकली पता ही नहीं था. मैं देखता था, शाबी भाई को देखता था, मैं एज अ फ़ैन मिला था उनसे, ठीक है. मैं उनका फ़ैन था और काफ़ी बड़ा फ़ैन था. और फर्स्ट टाइम मिला, उनके साथ आया, शॉर्ट स्टोरी के मैं उनके साथ शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होने के बाद मैं घर में हर टाइम ना लाइक वेला बैठा रहता था. मैं कहता था, मैं फोटोग्राफर आया था ऐसे. ठीक है, फोटोग्राफर मतलब मैं अपने आप को फोटोग्राफर समझता था, लेकिन जो कि मैं नहीं हूँ. तो
उसके बाद शावी भाई जो हैं वो कहते थे कि यार शावी भाई जो है ना, ही इज़ नेक्स्ट लेवल, ठीक है, ये वो बंदा नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुमसे फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें मुझसे फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब ये बात का मतलब ये था कि मैं उनके व्लॉग्स में आता था, हर टाइम मजाक करता था और Yeah. मैं कुछ कमाता नहीं था। लाइक कमाने से मुराद कि अब मेरा कोई चैनल नहीं था, मैं फोटोग्राफी करता था सिर्फ, ये वो। Right. तो उन्होंने कहा कि यार मुझे तुमसे फ़ायदा हो रहा है, तुम मेरा कंटेंट बना रहे हो, तो तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। मैंने कहा यार मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं मम्मी डैडी इस्लामाबाद का, कि भाई काम से मैं भागता था। मैंने लाइफ में मुश्किल से कोई काम किया होगा जिसमें मुझे कुछ पैसे मिले हों, ठीक है, मैं Right. इससे पहले ऐसा था। सॉरी। Easy. मुझे मेहनत पसंद नहीं थी। लाइक मैं नहीं चाहता था कि मैं मेहनत करूं और मेहनत किए बगैर मुझे पैसे मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आप Yeah. लोग मुझे क्या समझ रहे होंगे इस टाइम, कि मैं कहता हूँ मेहनत किए बगैर मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन वो नहीं था। फिर शाबी भाई ने मुझे कहा कि तुम यूट्यूब चैनल बनाओ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि बनाओ, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने सारा कुछ सिखाया। पहली Oh वीडियो में wow. मेरी बहुत मदद की। मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने शायद देखी हो, जिसमें शाबी भाई मेरे बाल काट रहे हैं, और मेरा वो पहली वीडियो थी। एडिट सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखाया कि यूं यूं एडिट करते हैं, ये वो Very सारा। nice. मैंने पहली वीडियो लगाई और मेरी पहली वीडियो 5 लाख पे गई। ब्रो मैं वो फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता। लाइक मैंने कहा यार ये कुछ और है, ये चीज़ कुछ और है। मुझे वाकई. उससे मोटिवेशन इतनी मिली। फिर मैं दूसरी वीडियो लगाई, वो 7 लाख पे गई। तीसरी लगाई जो कि अब तीसरी या चौथी जो कि अभी 1 मिलियन पे है। Wow. और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वीडियोस इतनी ऊपर जाएंगी। लाइक समझ रहे हो, Yeah, मैं bro. मतलब, और ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन में। Yeah. लॉकडाउन सारों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हुआ था। सारे Experience. घर में Yeah. बैठ गए थे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, मेरे लिए वो अच्छा था। लाइक Hmm. लॉकडाउन में हम व्लॉग्स बनाते थे, उससे लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। मुझे फ़नी कहते थे कि फ़नी है, ये वो इस टाइप की चीज़ें। तो उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया और ये व्यूज़ वगैरह, लाइक Yeah. मैं कहा समथिंग एल्स है यार ये यार चीज़। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि हम्म, कैसा एक्सपीरियंस होगा सही बात है। एकदम से स्टार्टिंग विद 500,000 यार. 500,000 और मेरे 1 मंथ में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। 1 मंथ में ब्रो मैं कहता था यार क्या है 1 लाख, इनक्रेडिबल यार. 1 लाख, जो कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, और मुझे प्लेट में मिला शाबी भाई की वजह से। मतलब वजह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सारा इंट्रोड्यूस कराया, सारा कुछ उन्होंने कराया। तो मैं उनका मतलब दिल से ना, मैं मेरे लिए वो बड़ा भाई है। या समझ और रहे हो, या मतलब वो मेरे लिए मेरे सगे भाइयों से भी ज़्यादा है। वेरी नाइस. वो इस टाइप के बंदे हैं। और पता है बहुत ज़्यादा लोग जो आपकी पोजीशन में होते हैं हाशिर, हम्म वो आई थिंक शायद ये भी कहते हैं कि नहीं यार शावीर भाई की वजह से नहीं है, मैंने हम्म खुद किया है. बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मैं कह रहा हूँ. हाँ, तो आप शायद ये कभी ना एडमिट करो बिकॉज मैं यू आर वेरी आज तक नाइस ये गाय. कहता हूँ, मैं आज तक ये कहता हूँ, मैं जो भी हूँ ना शावी भाई की वजह से। उन्होंने मुझे जितना मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा वीडियोस लगाओ। वो खुद वीडियोस नहीं लगाते, लेकिन मुझे कहते थे यार तुम क्यों नहीं लगा रहे, वीडियोस लगाया करो, तुम ये गलत कर रहे हो, वीडियोस लगाओ, तुम्हारा टाइम है अभी। और कोई भी, मेरा नहीं ख्याल के लाइक कोई बड़ा यूट्यूबर हो वो ये भी सोच सकता था कि ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। समझ रहे हो, या लाइक होते हैं काफ़ी लोगों की और आई थॉट्स एम होती हैं कि श्योर. यूट्यूब इसने बनाया तो ये निकलना चाहिए। यार उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते थे बस तुम काम करो, तुम मेरे भाइयों की तरह हो, और तुम्हें जितनी सपोर्ट चाहिए। उनका जैसा मर्जी मूड होता था, मैं उनके सामने कैमरा लेके आता था, वो मेरा कंटेंट बनाते थे। लाइक वो इस टाइप का बंदा है, वो वाओ. बहुत नाइस बंदा है। यार मैंने बाकियों से भी, खाकान हम्म जरार जिससे भी बात हुई हो अबाउट शावीर, द मिथिकल शावीर जाफरी, मिला भी हूँ एक दो दफ़ा हम्म उनसे. एंड उन तीनों से खाकान की रिकलेक्शन से, जरार की रिकलेक्शन से और अपनी इंटरेक्शन से मुझे यही पता लगा कि यार वो एक तो बहुत फोकस्ड बंदा लगता है मुझे, एटलीस्ट अबाउट हिज वर्क. बट देन ऑल्सो यार लाइक आई हैव नेवर हर्ड anyone say a bad thing about him कि उसने ये किया या उस तरह कह दिया मुझे या कुछ. He seems like somebody who बहुत collected और बहुत like he has his stuff figured out. But Hashir, I mean, it's very like I think it's very wholesome of you and very real of you to say these things. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग शायद ये इस चीज़ से डरते होते कहने के कि नहीं ये नहीं मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है. But bro, I think the reality is जो first episode which of yours which reached that many views और ये जो पहली 3 episodes का आपने बताया, this just proves to me कि you are one of those guys जिसको अगर एक बहुत बड़ी audience के सामने खड़ा कर दो, people will just love you.
And I think people really do love you क्योंकि मुझे खकान और ज़रार कहते हैं कि यार हमें हाशिर के फैन से बड़ा डर लगता है कहते हैं कि ब्रो हम हाशिर को कुछ कहने ही करते लेकिन उनके फैंस ऐसे पहुंचते हैं हाशिर की उसको डिफेंड करने के लिए क्या सीन है व्हाट्स योर कनेक्शन विद द फैन लाइक बेस यार जो फ़ैन है बेसिकली जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं फ़ैन्स की वजह से लाइक शावी भाई, फिर फैंस जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं उनके लिए नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ अपने हर फ़ैन को। मैं जितने भी मैसेज हो ना मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता It's हूँ very कि sweet. मैं लोगों को रिप्लाई करूँ। लाइक मैं कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हूँ, मैं उन जैसा ही हूँ। मैं बस ये है कि बस मैं कैमरे के आगे हूँ, वो कैमरे के आगे नहीं है। Yeah, समझ रहे हो? लाइक literally. मैं जिस तरह बाहर आके मुझे फैंस मिलते हैं तो मैं उसी तरह मिलता हूँ जिस तरह के वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। समझ रहे हो? लाइक Yeah. उस टाइप का मिलता हूँ क्योंकि उनके प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। अगर वो ना होते मैं कुछ भी ना होता। ठीक है? लाइक मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने फैंस से। That's very sweet, yeah, and that's very again real of you. और आई थिंक ये बहुत फिट बात है यार कि इसी तरह है क्योंकि लोग बहुत बदल जाते हैं, बहुत जल्दी बदल। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा लोगों को हाँ, बदलते हुए अपनी आंखों के सामने। सही बात हाउ है। मेनी पीपल यू आर अराउंड इन दिस काइंड ऑफ एन यार इंडस्ट्री मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने बेसिकली मेरे दोस्त थे कुछ यूनिवर्सिटी के, पहले वो मुझे मुंह भी नहीं लगाते थे। समझ रहे हो? Yeah. मैं वो लड़का था जो हर किसी के अंदर जाके ना फिक्स होता था, बातें करता था। मुझे शौक था कि मेरे दोस्त बने। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी लाइफ ये थी कि सारे यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी होती थी, ये वो इस Yeah. टाइप के दोस्त थे। मतलब यार मेरा एक दोस्त है दानियाल, उसका नाम भी दानियाल है इस्लामाबाद में। अच्छा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड Very ठीक है? nice. उसने मेरा आज तक साथ नहीं छोड़ा। वो जिस तरह पहले था उस तरह ही आज है। बाकी मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को देखा बदलते हुए। मुझे वो कहते थे कि यार तू पागल है, तुझे शावीर यूज़ करेगा, ये वो। यार मुझे कभी ना शावीर भाई से बैड फीलिंग नहीं आई और हमेशा वो इस टाइप के थे। मैं उनसे 2 हफ्ते मिला हूँ, 2 हफ्ते बाद वो जा रहे थे, मैं उनके साथ हफ्ता स्पेंड किया और मैं रो रहा था, लिटरली आंसुओं से रो रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं। Oh. मैं इस टाइप का था। मैं क्या क्यों जा रहे हो? और वो आके उन्होंने मुझे हक किया, मुझे प्यार किया कि मैं वापस आऊँगा, तुम मेरे साथ रहना है पाकिस्तान। मैंने कहा यार काश हो जाए। Yeah. और वो टाइम आया, अब मैं उनके साथ हूँ। लाइक मैं उनके साथ रहता हूँ यार। मतलब ही इज़ अ नेक्स्ट लेवल पर्सन। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा। और मैंने काफ़ी लोग देखे हैं बदलते हुए, जिस तरह मेरे काफ़ी दोस्त थे यूनिवर्सिटी के जो मुझे पूछते भी नहीं थे। अब Yeah. वही ब्रो कैसा है यार, ये तू तो बदल गया, तू सेलिब्रिटी बन गया है, ये उस टाइप की चीज़ें। लाइक Yeah. मुझे वो फेकिज़म नहीं पसंद, तो Yeah. इसलिए मैं लेकिन उन सारों से मिलता हूँ। मैं ये नहीं कि किसी से कट ऑफ किया। मैं उनके मुंह पे भी कहता हूँ कि तुम लोग चेंज हुए हो, Yeah. तुम लोग Very काफ़ी nice. चेंज हो। बताना हाँ, चाहिए. मैं लेकिन उनसे मिलता हूँ कि उनको कोई गिला ना रहे Right. कि ये फेमस होने के बाद मिलता नहीं है वो। और मैं भी उन्हीं की तरह बनता हूँ। मेरे 4-5 दोस्त हैं इस्लामाबाद में, एक हमज़ा है और हाशिर है एक मेरे नाम का ही। Yeah. मतलब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो इस टाइप का मतलब वही हैं मेरे दोस्त। और उसके अलावा मैं दोस्त नहीं कहता किसी को। Yeah. शावी भाई वगैरह सारे मेरे दोस्त हैं। Yeah, no, I get that, and that's very good, यार. I mean, मैं आप सब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ऑन द माइक जो हम बिल्कुल भी अभी शुरू हो रहे हैं, लाइक हम अभी थाउजेंड्स में खेलते हैं सर, लाइक यू नो आई मीन हमारी इनिंग्स 100 व्यूज पे हम कहते हैं ये सेंचुरी हो गई bro. और एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आप यू आर हियर एंड यू आर so gracious about it. Like I love that. Like कोई ego नहीं, कुछ नहीं bro. Like I said, जिस तरह आप कह रहे थे ना शावीर भाई से बहुत अच्छी, I haven't gotten a bad vibe of you bro, and Thank you. that is very rare. Like होता है यार, like people are usually closed off when they meet people for the first time and everything, but यार बचपन से ना मैं आज बहुत सीरियस टॉक कर रहा हूँ। मुझे आपने हमेशा हंसते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं सीरियस टॉक करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ क्या थी। you're on the mic bro. हाँ, मैं ये सीन था कि 23 इयर्स तक ना मुझे लाइफ में कोई गम नहीं था। समझ लो, मैं हंसता खेलता, मैं वो लड़का था जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करके, गर्लफ्रेंड मतलब पता है कंट्रोवर्सी बनेगी लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। लाइक मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैं एक ही थी तो उससे मेरी लड़ाई, मैं जान के लड़ाई करता था कि मुझे लगे कि दुख कैसा होता है। लाइक समझ लो, मैं काफ़ी छोटा टाइप था। मतलब मेरा माइंड काफ़ी छोटा था, अपनी एज से काफ़ी नीचे था, क्योंकि मैं लोगों में ज़्यादा घुला मिला नहीं। यूनिवर्सिटी से पहले मेरे दोस्त जो थे मेरे से 10-10 साल छोटे थे, 5-5 10-10 साल। जो मेरी एज के लड़के थे वो बाहर फिरते थे और मेरे घर वाले इतना बाहर नहीं फिरने देते थे मुझे। तो इस टाइप का मतलब ये सीन था मेरा। और उसके बाद लाइफ ऐसे चेंज हुई मेरी 23rd के बाद। मतलब मैं जब 23 साल का था, 23 साल तक मैं लाइफ का हर एक टाइम जो है ना वो जीता था।
समझ रहे हो, मतलब जिसको कहते हैं कि मजे लेके लाइफ जीना, Yeah. मैं वो करता था। फिर क्या हुआ? लेकिन 23rd के बाद मेरा सर्कल खराब हुआ। I don't mean to ask like something या जो लाइक आप ये सीन हुआ, मैं आपको खुद बताता हूँ। लाइक जब मैं इस फील्ड में आया, मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुई। लाइक मैं लॉकडाउन भी शुरू हो गया था, Yeah. तो मैं घर में रहने लग गया काफ़ी, और बाहर नहीं निकलता था। तो इसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उससे Yeah. मैं ब्रेकअप हुआ। उसके बाद मेरी काफ़ी लाइक तबीयत ख़राब हुई, मैं अजीब हो गया। मुझे मुझे ये था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, इसके Yeah. बाद मैं सर्वाइव नहीं कर सकता अब। और वो टाइम था कि 23 साल तक मुझे गम का पता नहीं था, और मैं चाहता था कि मुझे कोई गम मिले। और वो मैं चाहता एकदम हूँ, से मैं देखना चाहता हूँ गम होता क्या है। और वो एकदम से मेरी लाइफ जो हुई ना, उसने लाइक मैं इस तरह का बंदा था कि यार मैं हर टाइम हंसता था। अब मैं घंटे में पूरे दिन में मैक्सिमम 3 घंटे वैसा हूँगा। Yeah. सॉरी, No problem, no problem. 3 घंटे मैं वैसा हूँगा। लाइक हंसता खेलता। लेकिन पहले मैं 24 आवर्स एक जैसा था। ये नहीं कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ जो है अब वो सीरियस लेने लगा हूँ कि शायद मैं मैच्योर हो गया हूँ Yeah. उस वजह से। हो सकता है। लेकिन जो वो लाइफ थी ना, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म है। मुझे लगा कि सब कुछ एंड है, अब मेरे लिए आगे कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे शावी भाई ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे कहा कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, Yeah. इस टाइप की चीज़ नहीं होती। तुम एक लाइक हिम्मत वाले बंदे हो, तुम लड़के हो, काफ़ी जवान हो। तो ये चीज़ है। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। रात के 3 बजे मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं उनको कॉल करता, शायद भी मेरी तबीयत ख़राब है। वो ऊपर आते थे, ऊपर आके मुझे समझाते थे, हाँ यार क्या हुआ है, चल रहा है, कुछ नहीं होता, इजी रहे। तो वो मुझे 2-2 घंटे 3-3 घंटे देते थे। Wow. और यार कोई बंदा, मेरे नहीं ख्याल से कि कोई बंदा इतना करता होगा, और ना कि मैं उनका कोई फैमिली मेम्बर हूँ, Yeah. ना, मैं सिर्फ एक दोस्त था। Yeah. और वो दोस्त से भाई जो है ना, मतलब मुझे असल मतलब वो पता चले कि दोस्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। Yeah. दोस्त एक ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ में कि जो आपके लिए सब कुछ हो। समझ रहे हो, मतलब Yeah. जो आपको दुख हो, जो खुशी हो, आप सबसे पहले जाके उससे बताओ Yeah. कि हाँ यार आज मुझे ये हुआ, वो हुआ। शावी भाई वो थे मेरे लिए, मतलब मैं अपनी थे क्या हैं Yeah. वो, Yeah. मैं अपनी उनकी अपनी हर बात मैं उनसे करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जब शाहिर भाई की शादी हुई, सबसे ज़्यादा मैं रो रहा था लिटरली। मैं Oh. पिलर के पीछे जाके रो रहा था Yeah. रुखसती वाले टाइम, और सारे देख के मुझे कहते इससे क्या हुआ है। और निकाह पे मैं रो रहा हूँ सही ज़्यादा कि यार मुझे, मेरा भाई है ये, Yeah. मतलब होता है यार, भाई है, naturally होता है। हाँ। Yeah. तो वो फील मुझे आज तक नहीं है, और मैं सलूट करता हूँ शाहिर भाई को। और मैं जितनी मेरी मैं कर सकता हूँ ना, मैं इंशाल्लाह आखिरी टाइम तक उनके लिए करूँगा। मुझे जब वो जो भी कहेंगे मैं उनके लिए करूँगा। वो कहते कुछ नहीं है मुझे ना, उन्होंने कभी मेरे से फेवर मांगते हैं। Yeah. वो सिर्फ वो बंदे हैं कि वो बस मदद करते हैं मेरी, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में कभी, मतलब मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। यार मैं शायद नो मैटर जो भी चीज़ हो जाए मेरे साथ, जो भी हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं उनका साथ नहीं कभी छोड़ूंगा। I मुझे feel वो like ये breakup काफी important था in your personal development. शायद Like क्योंकि you know like इस तरह की चीज़ यार वैसे I think हर कोई एक ना एक पॉइंट पे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है। और लेकिन इसका मतलब इम्पैक्ट जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि कितना सवियर हो सकता है यार। लाइक आपकी पूरी ज़िंदगी और वर्ल्ड व्यू एक तरह से होती है बेस्ड अराउंड अ सर्टेन पर्सन। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लाइक प्यार ऐसे ही कहते हैं, वही right? ना I भाई। think यार मुझे लगता था कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। yeah. मुझे लगता था कि प्यार नाम ये है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हुआ ना यार, हाँ। मतलब वो फील जो है ना, मैंने लाइफ में, मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज में। Right. समझ रहे हो जो मेरे साथ हुआ। Yeah. मुझे लगता था कभी किसी टाइम ये लगता था कि यार मैं क्यों जिंदा हूँ। Yeah. समझ रहे हो, लाइक मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता। मेरी लाइफ में वो नहीं है तो कुछ नहीं है। Yeah. लेकिन उसके बाद शाहिद भाई ने मुझे मीनिंग बताया कि लाइफ बहुत खूबसूरत है यार, Yes. लाइफ को देखो तो सही। Yeah. लेकिन बंदा उससे रिकवर नहीं कर सकता ब्रेकअप से। जो था मेरे लिए वो था, और वो लाइफ जो थी मेरी, वो मुझे लगता था कि
लाइक मैं बचपने में था, मैं अपने आप को दिलासे देता था कुछ नहीं होता हाशिर, हाशिर चलते हैं, अभी बात करते हैं, अभी ठीक करते हैं, आगे जाके इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। लेकिन मुझे पता था कि लाइक आगे थोड़ा सा मसला है, नहीं होगी, लेकिन मैं अपने आप को दिलासे देता था इंशाल्लाह 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 होगी। मैं अपने आप को झूठ में रखता था कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन एकदम जब लाइफ चेंज हुई मेरी, सब कुछ ख़त्म हुआ मेरा, मैंने कहा फक सीरियसली, जो बात है, मतलब क्या हुआ मेरे साथ। yeah. और उसके बाद मुझे बहुत सपोर्ट की शाहिद भाई ने, बहुत ज़्यादा, और मैं उनकी वजह से जो भी हूँ अब आज यहीं पे हूँ, अल्लाह का मैं शुक्र है। मज़ीद इस सब्जेक्ट पे वैसे बात वैसे थोड़ी ऊपर ऊपर से करना चाहूँगा, बट हम्म। बिफोर दैट आई थिंक आई वुड वांट टू आस्क लाइक हाउ आर यू डूइंग नाउ अबाउट इट, लाइक अब सीन गुड है, लाइक हाउ इज हाशिर यार नाउ? अब जो है ना सीन, मतलब होता है कभी कभार मेरे पे फेज आता है, लाइक ये वाला टाइम जो था मेरे लिए सबसे मुश्किल था लाइफ का, और अभी है मुश्किल है भी, लेकिन मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि हाशिर नहीं यार, मतलब आगे लाइफ है, बहुत है लाइफ, जो लोग तुमसे, इतने लोग प्यार करते हैं तुमसे, Yeah. जो लाइक व्यूज़ इतने आते ज़्यादा हैं, लोग, इतने yeah. ज़्यादा लोग यार, यहाँ पे 1000 लोग खड़े हो जाएं तो वो जगह पूरी फुल हो जाती है। सोचो स्टेडियम में 35,000 लोग होते हैं ब्रो, यहीं से हिसाब लगा लो यार, इतने लोग इतने लोग। मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का जो लोग मुझे पसंद करते हैं, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं आपका हर टाइम पे इंशाल्लाह आगे भी हमेशा आपके साथ रहूँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। लेकिन कुछ मेरे पे बैड टाइम आता है जो Yeah. कि हर किसी पे आता है, Yes. तो वो उस टाइम पे मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ एक उसमें, कि मैं कहता हूँ नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करो तुम अपने आप से, जो तुम पहले हाशिर थे तुम अब वो नहीं हो, Yeah. अब वो बीच में लाओ। तो अब मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और कोशिश नहीं, कर रहा हूँ बहुत कि अच्छी मैं बात पहले है। जैसा। And Hashir, I think सबसे बड़ी बात है that you're bold enough to accept it and you're bold enough to talk about it यहाँ पे, like in front of a camera and everything. मैंने I लाइफ think में आज that's- तक किसी के सामने बात नहीं की, Yeah. लाइक कैमरे में, किसी कैमरे में आज तक बात नहीं की। इसके बाद काफ़ी मेरे से क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है काफ़ी लोग बोलेंगे मुझे कि तूने क्या किया, गलत किया, लेकिन आई डोंट गिव अ फक। Yeah, bro. और ऐसे मुझे होना जो लोग चाहिए। मैटर करते हैं मेरे लिए वो मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। Inshallah, bro. And I hope this क्योंकि ये काफी cathartic experience होगा कि आप बात कर रहे हैं। यार I hope this helps. मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ब्रेकअप के बाद ना लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। Yes. ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। लाइक मुझ जैसा बंदा जो कि हर टाइम हंसता था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा यार मैं किस तरह का था, फ़नी, हर टाइम मजाक करना अपनी लाइफ को, मतलब मैं हर टाइम शुगल, अभी भी मैं हर टाइम शुगल करता हूँ, लेकिन वो जो मज़ा था ना लाइफ में, वो जो उस टाइम पे था, वो उसमें डर नहीं था, समझ रहे हो? Yeah. अब डर है, एक दिल में डर बैठ गया हुआ है, एकदम बात करते करते चुप, क्या हुआ, अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, हाशिर क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या क्या सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, Yeah. समझ रहे हो? Yeah, लाइक yeah, yeah. बात पे बात जहन में ये चल रहा है, यहाँ से एक चीज़ आ गई, यहाँ से आ गई, ये डिफरेंट चीज़ें मिक्स होके आपके दिमाग में फंस गई कि यार अब क्या होगा हाशिर। Yeah. लेकिन आप उससे लड़ो, मैं उस चीज़ से लड़ता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार हाशिर ये सब कुछ फेक है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम लोग जो हो ना, वो माइंड यार बहुत पावरफुल चीज़ है, Yes. तुम लोग जो डिप्रेशन में जो है वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं। Yeah. जो अगर आपको हमारी लाइफ पसंद है, जिस तरह हम शुगर लगाते हैं उस तरह की Yeah. चीज़ें पसंद है, तो आप लोग वो कर सकते हो। Yeah. और आपका गोल अगर एक है कि आपने इस टाइम पे BMW लेनी है, तो आप ले सकते हो, आप इतनी मेहनत कर सकते हो, आप जो चीज़ सोचते हो वो कर सकते हो आप। ये चीज़ मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ Yeah. कि आप अपने आप को कभी डीमोटिवेट ना करो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए। मैं हर जगह जाके उर्दू में बोलता हूँ। यहाँ तक कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी प्रेजेंटेशन होती थी, सारे मेरे पे हंसते थे, सामने लड़कियाँ बैठी होती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं उर्दू में बात करता, मैम कहती इंग्लिश में दो, मैं कहता नहीं आती, फेल करना कर दें आप। बिल्कुल सही। मैं उस चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनाई। मेरे से काफ़ी दफ़ा बाहर जाता हूँ मैं, मेरे से इंग्लिश में लोग बात करते हैं, मैं उनको कहता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बात करें। Yeah. लाइक इसको मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई। नहीं है तो आपकी कोई चीज़ कमज़ोरी नहीं होती, आप किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी बनाने ही ना दो, Yes. आप उस चीज़ से लड़ो। आप कहो कि यार तुम ना दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। Yeah. तो ये चीज़ मैं हर किसी में कहूँगा कि हर बंदा ना सब कुछ कर सकता है। Yes. मैं अगर जिस स्टेज पे मैं था ना 23 साल के बाद, मुझे लगता था कि मैं शायद अगला हफ्ता नहीं ज़िंदा रह सकता, लेकिन सर्वाइव कर रहा हूँ ना। Yeah. और मैं अगला हफ्ता मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ये है कि मैं इसके बाद शायद मतलब ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, समझ रहे, यूट्यूब सब कुछ छोड़ के Yeah. मैं एक ऐसी जगह पे चला जाऊँ और जाके अपने आप को बंद कर लूँ जहाँ पे कोई कुछ ना हो।
Yeah. कोई चीज़ ना हो। Yeah. लेकिन नहीं, मैंने अपने आप से लड़ा, मैंने अपने आप से मैंने कहा नहीं हाश तुम कर सकते हो। मैं बीच में ब्रेक ली, आप लोगों को पता होगा, आप लोग कहते थे व्लॉग्स नहीं आते मेरे Yeah. मेरे 1.5 महीने व्लॉग नहीं आए, बीच में 3 महीने नहीं आए, बीच में 2 महीने नहीं आए। जो वो फेज़ होता था जब मेरे व्लॉग्स नहीं आते थे, तब उस टाइम मैं अपने पीक पे होता था। मतलब मेरा माइंड ऐसे होता था कि बस एक कमरा होता था, मैं होता था और कोई नहीं होता था। Yeah. और मैं शाबी भाई को बताता है, शाबी भाई ये चीज़ है, मैं अपने खकान को बताता था। खकान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, Yeah. ठीक है। खकान और शाबी भाई, ज़रार, ये और मौसम भाई, जिस तरह जो हमारे क्रू में Yeah. में बेस्ट लोग हैं भैया, वो ऐसे लोग किसी को नहीं मिल सकते मेरे हर बुरे टाइम में। कभी शाबी भाई काम आए, कभी क्या मोस्टली शाबी भाई काम आए, खकान काम आया, मौसम भाई बहुत काम आए, समझ रहे हो? मतलब Yeah. लाइफ जो है ना, वो आपके आपके आसपास जो है ना, आपको एक दोस्त, सच्चा दोस्त होना चाहिए आपके Yes. साथ। एक ऐसा दोस्त बनाओ। आप लोग कहते हो कि हमें अपनी लाइफ में हाशिर चाहिए, आप खुद हाशिर क्यों नहीं बन सकते? Facts. आप ये ना कहा करो कि यार हमें एक लाइफ में ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें हाशिर जैसा दोस्त हो। आप खुद हाशिर बन जाओ, आप वो दोस्त बनो. आप वो अपना दोस्त वो बनो, आप अपना दोस्त बनो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये Yeah. चीज़ ज़हन में, मैं हमेशा ये हर किसी को कहता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि होते हैं, या मेरा एक गोल है, मेरा ये गोल है। मेरे जो इस्लामाबाद के दोस्त हैं ना, वो थोड़े मतलब वो हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। मैंने उनको लेके जाना है ऊपर, Yeah. जिस तरह शावी भाई मुझे ऊपर लेके गए थे, Yes. जिस तरह मेरी मदद की उन्होंने। मेरे इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं, उनके घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन Yeah. मैं इंशाल्लाह इतना बनना चाहता हूँ कि मैं उनको अपने साथ लेके चलूँ, उनको भी वो चीज़ दिखाऊँ कि लाइक जो मैं हूँ, वो जो मेरी लाइफ गुजरी है, जहाँ पे मैं था पहले। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। Yeah. मैं क्यों किसी से छुपाऊँ? मेरे बाबा गवर्नमेंट जॉब करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में डायरेक्टर थे, गवर्नमेंट जॉब थी। लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं कोई इतना वो नहीं था। हम पे बैड टाइम भी आया, बिल्कुल. बैड टाइम आया तो मैंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। मैं पहले रेसिंग करता था, कार रेसिंग करता था। मैंने ये चीज़ें आज तक नहीं बोली, पता नहीं क्यों यहाँ पे सब कुछ बोल रहा हूँ। I love you. I love you. मैंने कार रेसिंग शुरू की। मेरा दोस्त है एक, उसकी डेथ होगी कार रेसिंग में, तो फिर I'm मैंने so sorry. हाँ रेसिंग छोड़ दी। मैं बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने उसके बाद रेसिंग छोड़ दी। रेसिंग छोड़ के मैंने कैमरा लिया। मेरे पापा कहते हैं, मेरे पे एक वो टाइम आया था, मेरे पापा कहते हैं मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकता। Oh. ये टाइम था मेरी लाइफ में, और मैंने फ़ोटोग्राफी करके पे करता था अपनी फ़ीस यूनिवर्सिटी की। यार बहुत बुरा टाइम था वो। खैर मेरा एक दोस्त है दानियाल, जिसकी मैंने पहले Yes. बात बताई Yes. थी, बिल्कुल. उसने मेरी फीसें दी थी 2 सेमेस्टर्स की। यार वो उस जैसा दोस्त मुझे नहीं मिल सकता। एक वो दोस्त तो शावी भाई वगैरह जो, Yeah. ठीक है। तो मतलब मैं आई लव यू यार दानियाल, आई लव यू। I love you also, Daniel. Seriously. यार, what a guy, honestly. यार, it's Seriously, I love you. so amazing to हाँ, hear, यार. तो ये था उसने। और ये टाइम आया मेरे पास फिर साथ photography से फिर आगे फोटोग्राफी you. से आगे, फिर शावी भाई से मिला, फिर उसके बाद यूट्यूब शुरू किया, फिर लाइव देखी कैसी है, फिर खुद कमाना शुरू किया। Yeah. जब खुद कमाना शुरू किया तो देखा कि यार जिम्मेदारियां भी हैं सर पे, Yes. घर वालों को देखा। Yes. मतलब उसके बाद आगे लाइफ स्टार्ट हुई, और मैं मज़ा आने लग गया कि आप किसी की हेल्प करते हो Yeah. तो आपको उससे सुकून मिलता है, समझ रहे हो? लाइक Yeah. मैं इसी तरह अपने दोस्तों को, जो कि दोस्त मेरे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार वो भी ऊपर जाएं, और वो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, Yeah. और इंशाल्लाह मैं ये करूँगा। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं इतना बड़ा बन जाऊँ कि मैं पाकिस्तान से गुर्बत हटाऊँ। Inshallah. इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इतना बड़ा I don't think enough people talk about that. हम्म। Like पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हैं, especially एक बहुत ही obvious poverty gap है, like बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा गुर्बत बहुत है, ज़्यादा गुर्बत और बीच में बहुत कम है. बहुत कम Like लोग, like it's really disheartening to see. And Hashir, I think it's really awesome कि usually अभी तक लोग आके मुझे बताते हैं कि उन्हें ये करना है ज़िंदगी में, वो करना है ज़िंदगी में, अपनी aspirations बताते हैं. You're just telling me that you want to help people. I think that's really awesome. यार. इंशाल्लाह Like, इंशाल्लाह। यार एक बात ये कहना भी चाहूँगा मैं कि कभी आप ना हार ना मानो। मेरा ये कहना है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो ये ना सोचे कि यार वो अमीर नहीं बन सकता, जो गरीब फैमिली से वो ये ना सोचे अमीर नहीं बन सकता। यार हर कोई बन सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप उस चीज़ से लड़ो, अगर आप उससे भागोगे कि नहीं अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरी लाइफ यही रहेगी। नहीं, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो यार। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप अपने, कहते हैं ना यार, अपने माइंड से आप सब
कुछ कर सकते हो, Yes. सब कुछ कर सकते हो। Yes. जिस तरह बाहर के मुल्कों में वो क्यों कामयाब हैं, चाइनीज क्यों कामयाब हैं, वो काम करते हैं। Yeah. वो ये सोचते नहीं है कि हम किस तरह होंगे, वो करके दिखाते हैं। Yeah. सीधी बात है, वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। उनके बच्चे कोई 7 साल आई थिंक एज होती है जिनकी कि वो काम करना शुरू हो जाते हैं, और चाइनीज को देखो आज कहाँ पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर कोई कर सकता है। और यार हमारे मुल्क में आई फील स्पेशली एक लाइक माइंडसेट है जिसमें लोग, मैं ही नहीं कहता हार मान जाते हैं या इस तरह कुछ, लाइक वो लोगों की रियलिटीज़ उनकी अपनी होती हैं, लेकिन आई फील लाइक यार अगर कोई मुल्क देखना है जिसमें लोग ऑब्वियसली डिस्करेज्ड होंगे तो वो पाकिस्तान है यार। यहाँ पे आप कुछ करना चाहो, बिजनेस खड़ा करना चाहो तो 1000 चीज़ें जो आपको रोकेंगी, आपको अच्छा काम भी करना चाहो तो उसमें भी 1000 चीज़ें जो आपको रोकेंगी। हम कितने सालों से क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं यार एज अ कंट्री, लाइक हमने लोड शेडिंग देखी है, हमने करप्ट गवर्नमेंट्स देखी हैं, सही हमने बात है। प्राइम मिनिस्टर उठाते हुए देखा है, नए जो इलेक्शंस हुए उन पे भी हर चीज़ पे कोई ना कोई मसला होता है यार। हाँ। पाकिस्तान में आई थिंक वर्ल्ड ओवर इज वेल ये चीज़ें हैं, बट देन ऑल्सो लाइक हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम लोग हाँ, नेचुरली एक सही काफ़ी बात। वो है। तो आई एम रियली हैप्पी कि लाइक यू गाइज लाइक यू आर मोटिवेटिंग पीपल टू डू द सेम। और व्लॉग्स आई फील लाइक बहुत एक अच्छा मीडियम है यार जिसमें लोगों को आप काइंड ऑफ दिखा सकते हो कि ज़िंदगी के और भी टेक्स हो सकते हैं आप। यार मेरी लाइफ का मकसद ये था शुरू में कि लोगों को हंसाना है मैंने। जो Yeah. लोग डिप्रेशन में है ना, उनको डिप्रेशन से निकालना है। लव इट। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने कभी गम नहीं देखा था यार। मैं इस तरह का था, मैं कहता लोगों को गम क्यों होता है, लोग भी हंसे, लाइफ बहुत मजे की चीज़ है। या नहीं, मैं इसलिए हर टाइम मजाक करता हूँ। मैं कहता यार अगर आपसे कोई लोग खुश हो रहे हो और उनके दिल से कोई दुआ निकल जाए और वो कबूल हो जाए, दैट्स क्या अमेजिंग। शायद दुआ कबूल ही है जो कि मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। और लोगों को मैं इसलिए हंसाता था। मैं कहता यार डिप्रेशन में मतलब लोग ना रहें, हर टाइम फनी करते 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 एक टाइम मेरे पे ऐसा आ गया कि वो डिप्रेशन मेरे पे आ गया। या मतलब मैंने बहुत कोशिश की मैं लोगों को हंसाने की, लेकिन वो चीज़ एकदम ना वो डिप्रेशन मेरे पे आ गया। और मैंने देखा यार नहीं, लोग जो हैं सही कहते हैं कि मतलब इट इज डिप्रेशन होता है, नहीं ये होता चीज़ है है। यार। और ये आई थिंक लेकिन उससे लड़ना चाहिए, उससे Yes. डरना नहीं चाहिए। यस ये डर के बैठ जो नहीं, आप नहीं कर, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ यार मुझे ये लगता है कि हर कोई आके ये कहता है कि आप मर्द हो तो आप क्या नाम है आपका रोना नहीं बनता। या नहीं समझ रहे हो? लाइक बकवास आपको आप इमोशनल नहीं हो सकते, बकवास। औरतें इमोशनल हो सकती है यार। हमारी भी फीलिंग्स हैं, Yeah. हम भी इंसान हैं। या और किसी के सामने इमोशनल हो जाओ, मैं बाबा के सामने इमोशनल लूँगा, आके कहेंगे बेटा क्या है ये, तुम लड़के हो। यस यार हम भी इंसान हैं, Yeah. हम भी एक लाइक हमें भी हो सकता है दुख। यस हर किसी के इंसान के अंदर, हर मर्द के, ये नहीं कि मैं मर्द को डिफाइन करूं कि मर्द ये Yeah. कोई उस तरह का नहीं है टॉपिक, प्लीज उठाना देना। हाँ या लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मर्द को भी होता है, यस मर्द भी जो है वो स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कभी कभार एक टाइम ऐसा आ जाता है आपके ऊपर कि आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपकी बस हो जाती है, या तब आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो सबसे बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल और लोग आपको कहते हैं नहीं तू मर्द है, तू ये ऐसी बात नहीं होती है, हर बिल्कुल कोई नहीं कमज़ोर होता है। और यार मैं तो आई वुड से आई एम मोर सेंसिटिव देन मोस्ट मैन और विमेन आई नो। लाइक मैं बहुत सेंसिटिव बंदा हूँ, लाइक मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बहुत आराम से रोना शुरू कर देता हूँ। लाइक मेरा ये है। और वो इनिशियली मुझे भी होता था कि यार क्या हो गया यार, ऐसे कुछ हुआ भी नहीं है तू। लाइक मैं डिबेट्स का एक फाइनल हारा था स्कूल में, मैं स्कूल के बाहर बैठा रो रहा हूँ। और मैं एक दो दिन बाद सोचा कि यार क्या कर रहा है यार ये डिबेट्स हैं वो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हर बंदा एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्रीचर है। लाइक हम सब का जेनेटिक मेकअप और वो सारा कुछ एक सिमिलर है, लेकिन हम सब इंसान, इंडिविजुअल इंसान है। कुछ लोग होते हैं जिनको, मेरा एक दोस्त है जिसको कुछ भी हो जाए वो नहीं रोएगा। लाइक वो कुछ चाहता है कि यार आंसू आ जाए, यार आंसू आ जाए, कभी तो आंसू आ जाए, मैं रो लूँ कुछ वो, लेकिन उससे नहीं रो यार मेरे कुछ काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं। लाइक वो उनकी लाइफ में, मतलब वो मेरी लाइफ में हो ना तो शायद मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकूं।
लेकिन वो उनकी लाइफ में होता है और वो नॉर्मल रहते हैं, Yeah. वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो हाँ दिल से थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो मासूम होते हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप मर्द हो, आप ये कर सकते हो, आप ये वो, उसको डिग्रेड नहीं करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहिए। ये चीज़ सबसे बैड है। ये सबसे बड़ी ये टॉक्सिक हाँ मैस्कुलिनिटी है यार, ये कि आप किसी और मर्द को कहो कि आप फील ना हाँ करो। फील ना करो, क्यों ना फील करो, उसका भी दिल है यार, उस वो भी हर्ट होता है। जिस एग्जैक्टली तरह मैं अगर किसी के सामने एक आंसू मेरा निकल आएगा, 10 लोग आके कहेंगे ओ यार तू क्या है यार, तू क्यों रो रहा है, तू मर्द है, मर्द बन। लेकिन जो अगर वो मेरी तरफ जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मेरे उसमें आके देखें, तो मैं बहुत हर्ट हूँ या उस टाइम। या और उस टाइम मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही चीज़, Yeah. मुझे ये समझ आ रही है कि यार हाशिर रिलैक्स रह, अपने आप को रिलैक्स कर, और मेरी फीलिंग्स बाय इसलिए निकल रही है, मेरा इसलिए अगर मैं अपने आप को वो चीज़ रखूँ, शायद मैं सर्वाइव ही ना कर सकूँ, या मैं अगले दिन जाके कुछ कर लूँ। बिल्कुल अगर मेरा रोना निकल रहा है तो वो चीज़ रिलीज हो रही है Release हो मेरे रही है, बिल्कुल। अंदर से, कि मैं स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल। मैं अपने अंदर से निकाल रहा हूँ कि बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है निकल रहा है, इजी हो जा, थोड़ी देर बाद मैं खुद इजी हो जाऊंगा कि हाँ इजी, अब मैं ठीक हूँ। मेरे जहन में तो यही हमेशा होता है कि यार जब आप रोते हो ना, वो तब होता है जब यहाँ तक आप भर जाते हो और वो लीक होना शुरू हो जाता है, और ऐसे ही होता है यार। लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई अगर इस तरह का कोई एपिसोड को आके गया कि ना रो, अच्छा थैंक्स ये तो मैंने नहीं सोचा था ब्रो। वो अच्छा मजे की बात सुनो, मुझे याद है थोड़ा सा फीलिंग, मैं हंसने का दिल चाह रहा है। मेरे बाबा इतने फनी है यार, इतने फनी है। मैं शुरू से ना बहुत नालायक स्टूडेंट था ठीक है, मैं इतना नालायक था कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी फुल पास हुआ हूँ। मेरी एक आध में सप्ली लास्ट भी आई है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में आया, मेरी प्रॉब लग गई हुई थी 2, तो तीसरी प्रॉब थी। मैं बाबा को आके कहा यार बाबा लास्ट प्रॉब है, इसके बाद यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल देंगे। कहते हैं अच्छा बेटा क्या हाल है इसका। मैंने कहा बाबा यार सीन ये है कि अगर मैं सब्जेक्ट ड्रॉप करूँ जिसमें मैं फ़ेल हो रहा हूँ तो शायद मैं बच सकता हूँ। कहते हैं अच्छा बेटा सारे ड्रॉप कर दे। मैंने कहा ये मेरा बाप है, गुड यार लव यू बाप, बहुत कहते ये सब कुछ, कहते सारे ड्रॉप कर दो, अगले सेमेस्टर पढ़ लेना। मतलब ये बाबा इतने चलते यार। और लाइफ में ना मैंने कभी, इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिला हुआ है, मैं लाडला था घर वालों का, मैं हर टाइम शुगर वगैरह लाडला, मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। और जिस तरह लोगों को मार पड़ती थी फेल हो गए वो, मैं फेल होता बाबा कहते कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम कर लोगे तुम। आई लव दैट। ये क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये व्लॉगिंग में भी जब आप आए तो तब भी सपोर्ट था? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट नहीं की। मैं सारों को कहता हूँ मैं CS किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है। मैंने 8th सेमेस्टर में आके डिग्री छोड़ दी थी। मैं बाबा को कहा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे शौक नहीं है ठीक है पढ़ाई का, मैं पढ़ाई के बगैर पैसे कमा सकता हूँ। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ के पैसे कमाए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उससे आपको एटिकेट्स आते हैं, तमीज़ आती है। और वो सारा कुछ मेरे शाहिद भाई ने वैसे सिखा दिया जो पढ़ाई नहीं सिखाना था, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी एटिकेट सिखाए। मैं जब घर में आया तो मैं इतना बदतमीज़ था कि मैं बैठा होता, मैं कहता था हाँ खाना ला दूँ मेरी टेबल पे। शायद भाई ने देखी ये चीज़ कि ये तो बिगड़ा हुआ है, फिर उन्होंने सुधारा, उन्होंने कहा नहीं उठो खुद जाके लो। मैं घर में गंद मचाता था, कोई किसी से पानी मांगता था या फिर, तो मुझे घर के कहते थे तुम बच्चे नहीं हो 2 साल के, तुम अपना काम खुद किया करो, तुम नवाब क्यों बन के बैठे हुए हो, तुमने कभी अपनी लाइफ में मुश्किल चीज़ें देखी नहीं है। उन्होंने अपनी मुझे दी कि मैं काफ़ी जॉब की हुई है, मैंने अपना काफ़ी मुश्किल टाइम देखा, तुमने तो कुछ मुश्किल टाइम ही देखा, और तुम ये यूँ नहीं कर सकते, तुम तमीज़ सीखो। मैं बाहर रोड पे कचरा फेंक देता था, वो मुझे गाड़ी उसी टाइम रोकते थे, कहते उठा के लाओ और कचरा रखो। और घर आके मुझे ये सज़ा मिलती थी कि मैं पूरा घर साफ़ करता था। मुझे कहते घर साफ़ करो, ये तुम्हारी गलती है, मुझे सज़ाएं देते थे। उन्होंने मुझे तमीज़ सिखाई। खैर टॉपिक वो निकल गया तो टफ लव, आई लव दैट दो यार। ये ऐसे दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़रूरी। मेरे लिए ज़रूर था भाई। लाइक किसी हद तक, क्योंकि मेरे भी यही सीन होता था। मैं इतना लाइक मुझे आई नेवर लुक्ड आफ्टर, क्लीन आफ्टर माई सेल्फ। गंद मचा दिया तो वहाँ छोड़ दिया, खा रहा हूँ तो नोटिस नहीं किया सारे विंग्स के क्रम्स ज़मीन पे गिर रहे हैं। तो वो उसने मुझे बहुत का लाइक ये चीज़ इन अ वे सिखाई थी कि यार कुछ करते हो तो फिर उसके जो रेप्रिकॉशंस कॉन्सिक्वेंसेस वो भी आपने बेयर करने हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता बस करके छोड़ दिया। तो यार ये ना I feel like it's a story about just really good friends, like having good friends and identifying कि कौन लोग आपका actually फ़ायदा देखते हैं। क्योंकि आपने एक सेंटेंस बड़ा पासिंग में बोला था लेकिन मैंने नोट किया था, आपने कहा था कि
कभी आपको शावीर भाई से बैड वाइब नहीं आई और हाँ आपको कभी वो नहीं हो, तो in that case I think that's like the best kind of friend someone can have. Seriously. And if people are looking for like ways कि वो भी इस तरह like they can get out of their life, look at people around you और देखो assess करो कि actually कौन real है, कौन आपके कौन, लिए यहाँ पे हाँ। है और कौन आपके फायदे के लिए सोच रहा है, सही बात है। भले वो बात बुरी लगे. बेशक बेशक मुझे यार काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हुआ है, मेरी काफ़ी गलत चीज़ों पे उन्होंने मुझे डांटा है और मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई है, क्योंकि मुझे लाइफ में कभी किसी ने डांटा नहीं है। Yeah. मेरी लाइफ इस तरह की गुजरी है, मेरे अब्बा ने मुझे डांटा था, मैंने हाथ दीवार पे मार के अपना हाथ तोड़ दिया था। मैं इस टाइप का बिगड़ा हुआ बच्चा था, समझ रहे हो? Right. मैं जो सही बिगड़े हुए नहीं होते उस Yeah. टाइप का लाडला कि Yes. कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, कोई मुझे डांट नहीं सकता, मैं अपने आप में हूँ सब। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, जो गलत है उस पर डांट पड़ेगी, Yes. और वो चीज़ मुझे मज़ा आता था उसमें, Yes. क्योंकि वो मुझे सिखाते थे कि हाशिर इस तरह लाइफ नहीं चलती, तुम बदतमीज़ हो तो अपने आप को सुधारो। जो चीज़ पढ़ाई मुझे सिखा सकती थी, पढ़ाई यही सिखाती है ना Yes, आपको, yes, एटिकेट्स बिल्कुल. वगैरह सारा कुछ, बिल्कुल. और तमीज़ वगैरह, और ये सारा कुछ मेरे शायद भाई ने सिखाया कि नहीं, तुम गलत हो, तुम इस टाइम पे तुम ये गंद यूं ज़मीन पे नहीं फेंक सकते, बिल्कुल. तुम किसी से ऊंची आवाज़ में बदतमीज़ी नहीं कर सकते, अगर अगले की गलती ना हो Yes. तो तुम तमीज़ में रहो। तो बिल्कुल. उन्होंने मुझे सिखाया, और जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में प्योर हूँ, लाइक मुझे अब किसी चीज़ का वो नहीं है कि मैं पहले ये होता था बदतमीज़ था ये वो, लेकिन अब मैं हर किसी से इतने प्यार से मिलता हूँ, मतलब मुझे अब फील हुआ कि बाकी भी इंसान है, Yeah. समझ रहे हो? मतलब Yes. अपने आप को इतना नहीं, मैं मुझे पता है ये मीनिंग गलत है कि मैं बाकी भी, मैं पहले इस तरह का नहीं था क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ था, लेकिन Yeah. अब मैं ये चीज़ फील करता हूँ। Yes. मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो घर के काम करने वाले हैं, मैं उनको लिटरली हक करता हूँ। Yeah. मुझे वो भी इंसान है, बिल्कुल. वो उनसे प्यार लोगे तो वो प्यार आपको देंगे। बिल्कुल. जिसको अगर प्यार से तमीज़ से आगे से बात करोगे तो अगला तमीज़ से आपको जवाब देगा, अगर बिल्कुल. बदतमीज़ी से करोगे अगला बदतमीज़ी करेगा, Yeah. ऑफ कोर्स। और ये मैंने वैसे अपनी लाइफ और आई गेस लव लाइफ और इस तरह की चीज़ों के थ्रू खुद भी सीखा है, और ये कोई कंट्रोवर्सी, नोबडी केयर्स अबाउट माय लव लाइफ, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो एटलीस्ट जो मैंने उससे गैदर किया वो यही है कि लव इज रियली, सो व्हाट इज लव, व्हाट इज लव, बेबी डोंट हर्ट मी, बट व्हाट इज लव? लव ऑफ कोर्स नॉर्मली कन्वेंशनली लोग कहते हैं यार जो जिस बंदी या बंदे के साथ मुझे प्यार हुआ है, लाइक मैं उसके साथ प्यार करना चाहता हूँ, वो लव है. लव हाँ एक हद तक वो है, बट आई रियली थिंक love, life and friendship, these three things kind of go hand in hand. You can love someone without being in a relationship with someone. I think that's the purest kind of love, like when you really, like I love you Umar Fasi, and I'm very glad कि हम लोग हर दिन मिलते इस तरह, but I'm not dating him, right? Yeah. And I don't have to. जो बात है, like that is a kind of love which really fills up a gap more than anything else. And then even when you're looking for partners and stuff, you'd always want to go for somebody jo is someone who's attractive to you. That stuff is important and should be like, you shouldn't lie to yourself ki nahi, I don't care what a person looks like, jo aapko pasand hai, simple as that. That's one thing which you should take into account. But then also कि like अगर हम लोग रिलेशनशिप में ना होते तो हम दोस्त होते, लाइक ये बहुत की चीज होती है यार, क्योंकि आपने उस बंदे या बंदी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है. इट्स लाइक अ टैग टीम पार्टनरशिप फॉर लाइफ. अच्छा, मुझे इससे एक चीज याद आई. मैंने जो मुझे पसंद थी, जिससे मैं ब्रेकअप हुआ, मैंने उसको आई थिंक तीसरी दफ़ा मिलने पे मैंने कह दिया तो मुझे पसंद हो तुम, और वो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल. तो मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं कहूँगा. मैं गलत था. और मतलब मैं गलत नहीं था, लेकिन मैं अपने मैं था. ठीक है. आई मीन दैट्स द हाई रोड, लाइक बड़ा बंदा बनने का यही रास्ता है. लाइक यार हाँ, मेरी काफ़ी गलतियाँ थी जो मेरे सामने आ गई. होती हैं. हाँ, हर किसी के अंदर गलतियाँ होती है, तो मैं अपने आप को ही ब्लेम कोई दूध का धुलावा नहीं है इस दुनिया में, धुलावा नहीं है, मैं अपने आप को ब्लेम करूँगा. तो मैंने तीसरे दिन उसे कह दिया था मुझे तुम पसंद हो, और उसने मुझे आगे से बोला था कि ये क्या चीज़ है. मैंने कहा जो मेरे दिल में मैं ये बोलूँगा, मैं ये नहीं कि पहले तुमसे दोस्ती करूँगा और फिर आके बोलूँगा कि नहीं आई लव यू. मैंने उसे तीसरे दिन बोल दिया था आई लव यू, अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना बेशक ना रहो. उसने आगे से मुझे बोला कि हम रहेंगे साथ तो एज अ दोस्त रहेंगे. मैंने कहा हाँ ठीक है, एज अ दोस्त रहो, लेकिन मैंने अपनी बात क्लियर कर दिया, मेरी तरफ से दोस्ती नहीं है. समझ रहे हो, मैं इस टाइप का लड़का हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे ये है कि जो मुझे पसंद आ गया, मुझे अभी भी
लाइक रिसेंटली भी कोई मुझे पसंद आएगा, मैं उसके मुंह पे जाके बोलूँगा आई लव यू। मुझे ये नहीं Yeah. कहूँगा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। जो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद कि फेक होके चलो। Yeah. मुझे जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ जो 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 लाइक किस तरह लाइक एक्सप्लेन करूँ मैं, जो मुझे पसंद है ना, जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर है। बिल्कुल समझ रहे हो? अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसके मुंह पे जाके बोलूँगा हाँ मुझे पसंद हो, नहीं पसंद तो मुंह पे बोलूँगा नहीं हो। बिल्कुल लेकिन मैं उससे कोशिश करूँगा ठीक करने की, मैं उससे Yeah. बोलूँगा भी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की, Yeah. मैं ठीक होके चलने की कोशिश करूँ। लेकिन जब मेरी बस हो जाएगी, मुझे जो बंदा नहीं पसंद, मैं उससे ये कहूँगा कि मैं गलत हूँ बिल्कुल और मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप That's गलत नहीं हो, क्योंकि मेरा माइंड मैच नहीं हुआ, right. मैं गलत हूँ, Right. ठीक है, और अगले की कोई कसूर नहीं है। Yeah. और मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि जो मुझे नहीं पसंद, लाइक आई डोंट लाइक यू, बट मैं जो मेरे दोस्त थे पहले, जो कि अब साथ हैं, जो लाइक Yeah. जो पहले दोस्त कहते थे, मुझे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं उनके मुंह पे ही कहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझे दोस्त मानो। लेकिन जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मुझे लगा, वो सारा कुछ मैं तुम्हारे सामने बोल तुम्हें दिया। पता होना हाँ, तुम्हें चाहिए पता होना चाहिए कि मुझे मुश्किल वक्त में बुलाओगे, मैं हमेशा आऊँगा, या मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सीन है, ठीक है मतलब। बिल्कुल सही और ऐसे ही हाँ होना चाहिए आई थिंक यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद पीपल क्योंकि वो फिर एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती अच्छा नहीं होता हाशिर हाउ सो लाइफ ऑब्वियसली यू टोल्ड मी इट्स चेंज्ड क्वाइट अ लॉट फॉर द गुड लाइक और ये बहुत अच्छी बात है बट यार फेम एंड बीइंग फेमस एंड बीइंग इन द लाइमलाइट मस्ट बी रियली हार्ड लाइक बहुत मुश्किल होता होगा कि हर वक्त यार या किसी ने पहचान लिया है या कोई नोटिफिकेशन आ रही है या कुछ हाँ आ रहा है इसमें एक हेट का भी एस्पेक्ट है कि लोग हम्म। हेट भी आई एम श्योर आपकी तरफ बहुत देते होंगे यार मुझे हेट से याद है, मैं घर के शावी भाई की तबीयत ख़राब थी तो मैं मेडिसिन लेने गया था, मुझे गाड़ी मार के गई थी What? लिटरली। मैं बाइक जा रहा था, मुझे पीछे गाड़ी रोकी उन्होंने घर के पास और कहते ये हाशिर है, हाशिर है। मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे साथ हुआ था। उन्होंने कहा हाशिर है, हाशिर है, और गाड़ी मुझे मारी, मैं साइड पे गिरा और आगे जाके उन्होंने गाली दी मुझे और चले गए। तो वो ये भी मेरे साथ हुआ है काफ़ी दफ़ा। एक दफ़ा पैकेजेस मॉल में मैं गया था, तो वहाँ पे एक लड़का आया, उसने ज़ोर से चपेट मारी मुझे पीछे, वो कहता कैसा जानी, ये वो फ़ैन था। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं, ये वो। तो कोविड था, मैंने कहा यार मैं हाथ मिला, मतलब यूं करके मिल लेते हैं, हाथ नहीं मिला सकता, कोविड है। कहता कुछ नहीं होता जानी, उसने हाथ पकड़ा मेरा, यूं करके गले लगाया बदतमीज़ी से काफ़ी। तो मैंने ये चीज़ें फेस की हुई है, मैं आगे किसी के बोलता नहीं हूँ कि लाइक बुरा ना लगे, बेशक वो फैंस है या हमें व्लॉग्स में देख देख के वो शायद अपने हमें ये समझते हो कि हम रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं और उसी तरह आके मिलते हो जिस तरह वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, लाइक मुझे ये लगता है। लेकिन वो जो गाड़ी वाला था, वो मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ बुरा ना करूँ, अगर किसी को मेरी वजह से आज भी दुख है तो मैं, अगर वो देख रही है तो आई एम सो सॉरी, मैं आपसे अभी माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी कोई चीज़ हर्ट की हो आपको। और मतलब कुछ भी इंसान का हर्ट कर जाता है, अगर कोई भी चीज़ हर्ट की हो तो मैं आपसे अभी सॉरी करता हूँ। और मुझे इस तरह की चीज़ें थी कि मैं कभी किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहता, कि कोई मुझे गलत अल्फाज में ना मिले। मैं अपने दोस्तों से जो मतलबी थे, यही वर्ड यूज़ या हो सकता मतलब है, ही, हाँ हाँ, उनसे भी आज तक इसलिए मिलता हूँ कि वो ये ना कहें कि मतलब ये हाशिर जो है वो इस टाइप का हो गया कि इसमें गुरूर आ गई या हो। लाइक मुझे कुछ नहीं यार, मुझे ये है कि आप लोग खुश रहो, सारे दोस्त खुश रहें। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो मैं मुंह पे बोलूँगा कि ये हाँ इस तरह का है। लेकिन मुझे काफ़ी हर्ट हुई थी वो चीज़ कि मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं है, एक गाड़ी रैंडमली आती है मुझे मार के चली जाती है। और शावी भाई की तबीयत ख़राब थी तो मैं घर गया, शावी भाई को बहुत गुस्सा आया कि मतलब ये क्या हरकत है। उन्होंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि ये मतलब नहीं अच्छी चीज़, और फ़ैन आके मतलब इस तरह की हरकतें करे तो ये, क्योंकि नुकसान हो सकता है, अगर अल्लाह ना करे वो गाड़ी में ज़ोर से लगती, मेरे सर पे ईंट लग जाती, कोई चोट लग जाती, तो उनका तो कुछ नहीं जाना था, मेरा ही जाना था। नहीं यार ये हाँ आई एम वेरी लाइक अगेन सरप्राइज टू सी कि आप अभी भी उन्हें कह रहे हो कि यू नो इफ यू डन समथिंग रॉन्ग यार हम्म नथिंग कोई भी चीज़ ये नहीं वारंट करती कि कोई ऐसा करे वो हम्म लोग जो भी थे ब्रो वो इंसान नहीं वो गीदड़ है उनको छोड़ दो लाइक हम्म, दैट्स फक्ड अप लाइक जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यार लाइक हाँ
लाइक मैं बहुत डिस्कस्ड हुआ हूँ ये सुनकर, मुझे भी गुस्सा आ रहा है अब कि यार क्या मतलब लाइक ये इस तरह के काफ़ी होते हैं लाहौर में, मतलब बाकी जो फैंस मिलते हैं असल में यार लोगों को तमीज़ नहीं सिखाएगी, जो सीधी यार बात है, हाँ, ठीक है, लाइक ये बात बहुत गलत है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए हम भी इंसान हैं, हम भी हर्ट होते हैं। अगर आप मारेंगे ऑब्वियसली हम हर्ट होंगे, हमें लगेगी। मेरे हाथ में बाय द वे मेरी दोनों हाथ दोनों टांगे जो टूटी हुई हैं, मेरा एक्सीडेंट काफ़ी हुए हुए हैं। तो मेरे जब लगी थी तो मेरे टूटे हुए हाथ पे लगी थी, और मेरा 2 हफ्ते जो है मेरे हाथ में बहुत पेन रही थी। मेरी ये पूरी हाथ की हड्डी टूटी हुई है, यार तो उस पर काफ़ी पेन रही थी मुझे काफ़ी टाइम। और उसके बाद खैर जो भी था, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी बुरी लगती है आपको, तो आप लाजमी मुझे बोलें, आप मुझे डीएम करें कि आप आइंदा कि भाई ये चीज़ ना करो। मैं कभी नहीं करूँगा वो चीज़। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये हरकत कर रहे हो तो हमें बुरी लग रही है, वो मैं कभी हरकत नहीं करूँगा। और यही कहूँगा कि यार हम भी इंसान हैं, हमें भी आप अपने भाइयों की तरह लिया करें। हम भी मतलब आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हम जो करते हैं बातों बातों में कुछ चीज़ ऐसी बोल देते हैं जो कि हर्ट कर जाती है कभी या कभार। मैं रिदा के साथ काफ़ी बदतमीज़ी करता हूँ, आई नो मैं बदतमीज़ी करता हूँ, लेकिन वो मजाक होता है। मजाक में हम दोनों लड़ाई करते हैं काफ़ी। या और उसमें यह है कि मैं अगर वो हर्ट हो तो मैं उसे सॉरी भी करता हूँ कि यार सॉरी, मैं ज़्यादा बदतमीज़ी कर गया हूँ। तो कुछ लोगों को ये भी होता है कि मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो हमारा मजाक है, तो हम उस तरह का मजाक हम आपको जो दिखाते हैं वो उस तरह टाइप का मजाक होता है। वो ये नहीं होता कि मैं उसे हर्ट करूँ। अगर मैं हर्ट करता हूँ तो मैं उसे माफ़ी भी मांगता हूँ, फ़ौरन मांगता हूँ कि यार आई एम सॉरी, अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हें से। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को भी माइंड करते हैं कि मैं लड़कियों उससे उसकी इज्जत नहीं करता, बदतमीज़ी करता हूँ। वो मैं हूँ ही ऐसा, लाइक मैं मजाक करता हूँ और शुगर लगाता हूँ। मैं ये नहीं कि मेरा मतलब कोई गलत होगा कि मैं उसे वो करूँ। या मैं हंसाने के लिए कर रहा हूँ लोगों को, जो या है, जो बात क्योंकि है या आप लोगों को उस टाइप की चीज़ें पसंद भी आती है। काफ़ी मोस्टली लोगों को वो या चीज़ें पसंद आती हैं, तो ही मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ी सी हमें भी रिस्पेक्ट दिया करें। या नहीं, आई मीन हाँ। यार देखो, अगर वो वाला रूल है ना, जैसे आप द वे यू लिव योर लाइफ के डजेंट मैटर कि कौन है, उससे उसी तरह मिलना है। हम्म। और कोई यू डोंट डिफरेंशिएट कि मतलब ये बंदा इधर से उधर से, आप हर एक को गले लगा के हंसाने की हम्म। कोशिश करते हो। तो थोड़ी सी क्या है यार, मतलब हम्म। इट्स लाइक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि कोई करे। असल में ना लोगों ने कभी एमएमए जिम नहीं आए, मिक्स मार्शल आर्ट्स की जिम नहीं आए वो कभी। मैं हाँ। चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, उनको मार पड़े, थोड़ी मुंह पे मुक्के पड़े, थोड़ा वो हम्बल हो, जैसा खबीब कहता है ना, यू नीड टू बी हाँ। हम्बल बिफोर हाँ। लाइफ हम्बल यू, वो हो उनके साथ। तो फिर वो कभी ऐसी हरकतें ना करें। हम्म। ऑनेस्टली यार, आई यू नो मतलब क्या क्या ग्रीवेंस हो सकती है बंदे की जो या वो इस तरह की हरकत करे। एक बात आशिर, बताऊं। आप जो भी कर दो ना, सॉरी टू कट यू हम्म। ऑफ, जो भी आप कर दो ना, ये चीज़ें वारंटेड नहीं है। और हाँ ये मैं ये कह सकता हूँ विदाउट शैडो ऑफ अ डाउट कि अगर किसी को इतना मसला है, अनलेस आपने उनको पर्सनली जाके कुछ कहा, अगर आप यू वीडियोस लगा रहे हो यार इस तरह की हम्म। चीज़ों पे, हम्म। खैर सॉरी यार, मैं थोड़ा तब चिढ़ गया यार, मिलवाओ इन बॉयज से जरा, को भी संभाले यार, खैर इजी यार। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर शाफी भाई ना मिलते मैं भी शायद ऐसा होता, क्योंकि मैं भी बिगड़ा हुआ था, मेरे माँ बाप का लाडला था। और या मैं भी इस तरह की हरकतें करता हूँ बचपन में, जिस तरह मैं लोगों की बैले बजा के भागता था, लाइक ये इस टाइप की चीज़ें सारी करते हैं। या लेकिन मैं बिगड़ा हुआ था। या मुझे तमीज़ सिखाई शायद मैंने, नहीं ये तमीज़ होती है। मैं भी ऐसा होता, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लाइक ब्लेम भी करना चाहूँगा कि उनको गलत है कि किसी को हर्ट ना करें। लेकिन ये भी होता है कि वो माँ बाप के लाडले जो होते हैं, जिस तरह माँ बाप उनको बहुत प्यार देते हैं, कोई कुछ कह दे तो उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे बेटे को क्यों कुछ कहा। मेरे माँ बाप ऐसे थे, या वो बोलते या थे कि क्यों मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ये चीज़ गलत है, अगर हम गलत है तो हमें गलत कहें, कहें, या हम बिल्कुल गलत हैं। और वो लोग जो हैं उनमें ये कहूँगा कि यार ये बहुत एक्सट्रीम वाली बदतमीज़ी है। ये माँ बाप ये तो नहीं सिखाते आप लोगों को कि आप लोगों को जाके हर्ट करो, आप लोगों को मारो जाके। या ये चीज़ तो नहीं सिखाते। वो इतना भी आपको नहीं कहेंगे कि आप भाई अगले को मार के और वो आपको शाबाशी दें, हाँ बेटा ठीक करके आए। कोई भी माँ बाप इस तरह का नहीं होता। नहीं होता। और या बस यही कहूँगा। बट लाइक हम्म। internally, I mean these are horrendous incidents and हम्म। I fucking hate जो भी वो लोग थे। हम्म। बट वैसे लाइक कमेंट्स, ऑल ऑफ दिस, ये भी जो चीज़ें आपने इंसिडेंट्स बताई हैं, इनको वैसे डील करने का क्या प्रोसेस होता है नॉर्मली? लाइक हाउ डू यू, अपने आप से कोई कॉन्वर्सेशन होती है जो आपको करनी होती है, या आप किसी से शेयर करो तो डज इट हेल्प मेक यू फील बेटर, या क्या? क्योंकि मैंने देखा आपका मेथड तो यही है टू गेट ओवर हम्म। समथिंग के वही ना,
गुस्से का जवाब प्यार से दो कि उनने ये हाँ कुछ और हाँ कहने लगा था, बहुत गलत बात की है उनने हाँ हाँ आप आगे से, लेकिन उनको फिर भी इन अ वे जस्टिफाई कर रहे हो कि उनके साथ कुछ हुआ होगा जो वो इस तरह के हैं, या उनको शायद गलत तरबियत दी हो जो वो इस तरह के हैं, लेकिन आप अपने आप में ये चीज़ डील करने वो उसका प्रोसेस क्या यार होता है? जब जब कभी मुझे बुरे कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं हर्ट होता हूँ। हर्ट से मुराद मैं देखता हूँ कि यार मेरे में खामी है, पहले तो ये देखता हूँ। अगर वो खामी होती है ना, तो मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और मैं लोगों से बहुत पूछता हूँ जाके। जैसा मुझे बैड कमेंट्स बहुत आते थे शुरू में कि या तुम यूज़ कर रहे हो शाबिर को, ये वो। मैं शाबिर भाई के पास जाता था, मैं कहता था, पूछता था, शाबिर भाई ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हो? कहते हैं आते हैं, इस तरह के हेट मिलता है, आते हैं कमेंट्स, मुझे पता है ना तुम कैसे हो, तुम मुझे यूज़ तो नहीं कर रहे। मतलब वो मुझे मुंह पे कह रहे, तो मैं अपनी तरफ से पूरी जाके कोशिश करता था। और शावी भाई की एक चीज़ ये है कि मुझे काफ़ी जो है ना कमेंट्स ये आते हैं, अभी भी आते हैं और आते थे भी, और मैं जाके उनसे डिस्कस भी करता था पहले कि यार शावी भाई ये मसला है, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको यूज़ करूँ क्या? तुम वो आगे से ये कहते मुझे पता है तुम मुझे यूज़ नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली, या तुम सारा कुछ। और तो वो कहते थे कि इन चीज़ों को ना इग्नोर करना छोड़ दो, जहाँ इतने तुम ये चीज़ देखा करो कि ऑडियंस है 100%, यस 100% में से 20% अगर आपको हेट कर रही है, तो 80% प्यार भी कर रहे हैं ना। दैट्स ट्रू एवरेज देखो 80% ठीक है या 20% ठीक है, तो मैं वो चीज़ देखता हूँ कि 80% वाले ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं वही चीज़ ठीक होगी। 80% अगर लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं, या तो मैं गलत नहीं हूँ। अगर 20% कर रहे हैं गलत, तो शायद वो गलत हैं, मैं गलत नहीं हूँ। या तो मैं इस चीज़ को अपने आप को करता हूँ। मैं फिर बाद में ये चीज़ें फील करना छोड़ दिया। अभी मैसेज पढ़ता हूँ, डीएम में मुझे गालियाँ बहुत देते हैं लोग, तो मैं वो देखता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ हाँ खैर है, अगर उनको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो लोग ना देखें मुझे। अगर उनको कोई बुरा लग रहा है मेरी चीज़, मतलब मेरी बातें बुरी लग रही है, तो मुझे ना देखें वो, आप बेशक अनफॉलो कर दें मुझे। तो या ये सीन है। मैं एक नई कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ कसम से, क्योंकि ब्रो तेरे से सिर्फ 2 दफा मिला हूँ, इतना तो स्वीट बंदा है यार, लव लाइक यू यार। इतना लव यू यार, जो इतना नाइस बंदा है, लाइक मुझे ये चीजें ग्रास्प नहीं हो रही कि क्यों #डोंट हेट हाशिर यार, प्लीज यार ये क्या बकवास है। यार होता है, काफ़ी होता है, पता एंड गेट अ है। लाइफ। अगर आप हाशिर के डीएम में जाके उसको गालियां दे रहे हो ना, प्लीज गेट समथिंग बेटर टू डू। अपनी जिंदगी का जो टाइम आप असॉर्ट कर रहे हो ना हाशिर की तरफ, उसको डिवर्ट करके किसी और अच्छी प्रोडक्टिव चीज में करो, जिसमें आपके और आपके घर वालों, आपके इर्द गिर्द के लोगों का कोई फायदा हो। किसी को हेट देने से यू आर नॉट गोइंग टू अचीव बेटर सोशल स्टेटस, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव मोर मनी, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनी लाइफ गोल्स, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, यू आर गोइंग टू बी अ लूजर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू जस्ट गो टू पीपल्स डीएम्स एंड गिव देम हेट। सॉरी मैंने थोड़ा अपनी चेस्ट से उतारना था, क्योंकि मुझे बहुत अब चढ़ी चीजें सुन के। बट आई एम ग्लैड यार यू रॉक सॉलिड, एंड आई एम ग्लैड कि तुम इन चीजों को ऐसे ही हैंडल करते हो जैसे एक प्रोफेशनल को करना चाहिए, आई गेस। यार मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो। मैं नहीं हूँ सेलिब्रिटी यार। मैं अभी अभी मैं क्या, मैं शायद बन भी नहीं सकता सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझूं। मैं नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ लोगों को। मेरी जो आपने काफ़ी पहले क्वेश्चन किया था कि फेम से पहले और फेम के बाद अब क्या Yes, फ़र्क है, yes. उसमें ये फ़र्क है, फेम से पहले मेरी पर्सनल लाइफ थी। मैं जहाँ जाता था अपने में रहता था, पर्सनल लाइफ थी। जब मुझे होता था अपने आप को टाइम देना था, तो वो मैं अपने आप को टाइम देता था, और मतलब कोई मुझे जानता नहीं था, तो वो मेरी पर्सनल लाइफ थी। अब मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है। अब ये फ़र्क है। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह नहीं है कि मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाके कुछ कर नहीं सकता। लाइक कभी कभार मैं स्मोकिंग करता हूँ। मैंने ये बात कभी नहीं बोली आपके इसमें बोल रहा हूँ। Thank you. मैं स्मोकिंग करता हूँ कभी कभार, तो वो चीज़ भी मैंने मैं बाय करता हूँ, तो मैं बाय स्मोकिंग नहीं कर सकता तो ये Yeah, चीज़ है। और बाहर इसलिए लोग देखते हैं, जज करते हैं आपको, yeah. तो वो कभी कभार फ़न के लिए करता हूँ मैं। वैसे रेगुलर उस टाइप का नहीं हूँ। Social smoking हाँ कुछ कहते हैं, मतलब हाँ। वैसे ही शुगर के लिए। 4 बॉयज ने लगाया हुआ, हाँ मैंने भी लगा हाँ लिया, वही हाँ, वाला शुगर के सीन है, लिए। तो हाँ। ये सीन था, मैं इस तरह करता था। और आपकी वो लाइफ नहीं होती, आप किसी के साथ बाहर नहीं जा सकते। मामा पापा के साथ बाहर जाते हो तो लोग आते हैं, तो मतलब मुझे खुशी होती है, मेरे माँ बाप को बहुत खुशी होती है। यार सबसे बड़ी चीज़ मैंने वो अचीव की थी। मेरी माँ ने एक चीज़ बोली थी कि पता नहीं बोलना चाहिए माँ, सॉरी। उन्होंने बोला था शावी भाई को, कहती कि यार ये कितना अच्छा बच्चा है और ये कहाँ पे है, काश मेरा बेटा जो है लम्या, ये किन माओं का बेटा है जो इतना स्वीट है, इतना अच्छा है, और कहाँ पे है कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं। और
ये पिछले दिनों में मुझे बात करी थी, और मेरे बाबा नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मेरे पापा को आके लोग मिले, और मेरे लिए सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट वो थी कि उन्होंने पहचाना, उन्होंने आके कहा कि आप हाशिर के बाप हैं। और मतलब मुझे बहुत दिल को सुकून मिला कि मेरे माँ बाप को शायद मेरे पे प्राउड फील हुआ हो के। और मेरी मामा जो है वो एक शॉप पे गई, वहाँ पे चीज़ें ले रही थी, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियों ने आके उनसे पिक्चर्स खींची। तो मैंने कहा यार मतलब अब लाइफ में मैं सब कुछ कर लिया, मैंने बस अपने माँ बाप को एक अच्छा घर, गाड़ी, सारा कुछ देना है इंशाल्लाह माँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रो। मैं सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया एंड वाला पार्ट सुन के, क्योंकि लाइक ब्रो फ्रॉम द हार्ड टाइम्स टू uni to starting photography to और बाय द वे एक चीज़ तो मेन बताई नहीं मैंने, क्या? जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी मैंने अपनी गाड़ी बेच के कैमरा लिया था, और वो कैमरा चोरी हो गया था मेरे घर से। मेरी मामा के सर पे पिस्टल रख के लोग आए, सारा घर का सारा कुछ ले गए, और वो हमारी लाइफ का बैड टाइम था बहुत। उस टाइम पे हम बहुत लाइक मुश्किल लाइफ गुजार रहे थे, और मेरा कैमरा था 3-4-5 लाख का था, वो ले गए, और सारा जेवर ले गए। और जाते हुए जब वो कैमरा लेके जाते तो मेरी माँ रोते हुए कह रही थी कि ये मेरे बेटे का कैमरा है, ये छोड़ जाओ, बाकी बेशक सारा कुछ ले जाओ। तो वो लाइफ, वो पार्ट भी देखा मैंने, लाइक या अल्लाह तेरा हर नेमत का शुक्र है कि तूने मुझे जहाँ पे मैं कहाँ से कहाँ पे लेके आया। और बस यही कहना चाहूँगा, लाइक मैं बहुत आज इमोशनल हो गया। जानी आई नो यार, आई कांट एक्सप्लेन कि मैं ये सब सुन के शॉक भी हुआ, बट इन द एंड अब लाइक ये सारी तो पुरानी स्टोरीज हैं, तुझे यहाँ देख के ना लाइक मुझे बहुत अब एक्स्ट्रा खुशी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नहीं यार, दिस इज इनक्रेडिबल यार, लाइक आई एम सो हैप्पी दैट थिंग्स आर बेटर नाउ। और यार जो बात है, आपने पूरे पॉडकास्ट लाइक मोस्टली लेसन्स ही देने के किए लोगों को, क्योंकि आई नो या मैं हमेशा ना फनी रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को हंसाता रहा हूँ। आज मैं अपनी लाइफ के बारे में ना मैं बताना चाह रहा था, लाइक मेरी लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता। हर कोई बोलता हाशिर जैसा हमारी लाइफ में दोस्त होना चाहिए। यार मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ, मैं हर टाइम हंसता नहीं हूँ, हर टाइम मेरा एक जैसा मूड नहीं होता मेरा। हर टाइम मैं लोगों को ऐसे लगता है कि मैं हर टाइम फनी हंसता रहता हूँ, मेरी लाइफ मतलब किसी की लाइफ ना हो। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत वर्स्ट लाइफ गुजरी है, और मैं अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहता था, तो मैंने रखा। और काफ़ी लोग जो है वो ये चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकते, काफ़ी लोग जो है वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन पे बैड टाइम आए और वो हैंडल कर सके उस चीज़ को। तो मैंने हैंडल कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और काफ़ी लोग नहीं कर सकते, और यही कहूँगा कि आप अपने आप में एक हाशिर ढूंढें, आप सब कुछ कर सकते हो। लव यू। I love this. Ashir, what an incredible story. And honestly, I'm so happy to see ke, you know, where you started, whatever you've gone through, all of the people who have supported you and held you up, and you, most importantly, सबसे बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम ब्रो आप ही हो। और ये आई थिंक आप लोगों को भी कह रहे हो, सही बात है ब्रो, यू फाउंड या मैं सपोर्ट सिस्टम नहीं हूँ, सबसे अच्छा शाबी भाई। मतलब वो उन्होंने मुझे लाइफ का मकसद सिखाया। आपकी हर लाइफ में हर बंदे के पास ना एक ऐसा दोस्त होता है जो आपको समझता है। और यार मैं कहता हूँ मुझे शावी भाई या नेक्स्ट लेवल है, अब वो मेरे भाइयों से ज्यादा है। लव यू शाबीर भाई, लव यू। लव यू शाबीर भाई, मैं भी कहता हूं यार, आप मेरी जान है, आप मेरी जान है, अल्लाह की कसम आप मेरी जान है। आप कभी मुझे बेशक चपेड़े मार के निकाले, मैं नहीं निकलूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं जूतियां मारो, मैं आपके साथ ही हूँ पूरी लाइफ। एवरीबॉडी नीड्स अ फ्रेंड लाइक हाशिर ब्रो। बाकी यार ऑनेस्टली हाशिर घंटा गुजर गया। यार आज बहुत इमोशनल हो गए यार। नहीं, मैंने कहा था ब्रो कि घंटा ऐसे निकलता है। और लेकिन ब्रो आई एम अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दिस स्टोरी टुडे, एंड आई एम श्योर फैंस को भी फाइनली एक डिफरेंट लुक मिला है देन द व्लॉग्स एंड एवरीथिंग। और जानी मैं ये बहुत खुले, लाइक एक्चुअली बहुत, आई मीन इट व्हेन आई से दिस bro, please come back on the podcast whenever you want. Inshallah. Stories, your life, किसी और को साथ लाना हो, जो भी है bro, आओ. This is your table. This is your mic and this is your platform to tell your stories. Because honestly bro,
I feel moved. I feel a little more motivated. और मैं भी अपने अंदर का हाशिर अब ढूंढूंगा bro. क्योंकि मेरे भी आजकल चल I'm going through the motions. हम सब everybody I think Yeah. हमारी generation ही बस ठीक होती है खराब होती है खराब ठीक होती है होती है, खराब ठीक होती है वेव है ब्रो लाइफ सही हम बात है। सारे cyclical depression के सही बात मरीज हैं I think बस मैं यही कहूंगा कि ब्रो I will find the hashir in me. I hope you find the hashir in यार me. आप सब कुछ कर सकते हो, मेरा ये कहना है, माइंड आपका सब कुछ कर सकता है, आप दुनिया के ना सबसे स्ट्रांग बंदे हो। और जो आप ये कर रहे हो ना पॉडकास्ट, इसमें इतनी जान मार दो, अगर आपको ये चीज़ पसंद है ना, इतनी जान आप जितना अपलोड करोगे ना, आप अगर बीच में छोड़ दोगे, मेरी तरह इनकंसिस्टेंसी ना रखो, तो आप इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाओगे। आप इंशाल्लाह। लिटरली मुझे दिल से बता रहा हूँ बहुत अच्छे लगे हो। मैं कभी मैं आपसे फर्स्ट टाइम जब इस्लामाबाद में मिला था, मुझे ज़रार ने एक दफ़ा कहा कि यार दानियाल ने करनी है पॉडकास्ट। मैंने कहा यार क्यों नहीं यार, मैं Thank you, जाऊँगा। bro. Thank तो you. मैं कसम से मैंने कहा था मैंने इस बंदे के साथ करनी है पॉडकास्ट। आई रियली लाइक हिम। Thank you. और I hope you enjoyed. बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया मुझे। Thank you, और bro. मैं ये कहूँगा कि आप मतलब कंसिस्टेंसी रखो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी देखना, इंशाल्लाह मेरा भाई सबसे बड़ा पॉडकास्ट सेंटर खोलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आशिर एक ही चीज रहेगी कहने को love you bro. Thank Thank you so much, Love you bro. too. Love you too. And- Thank you so much. Welcome back to the podcast whenever. इंशाल्लाह। And you don't need to say this, ladies and gentlemen. मैं इस बंदे को यहाँ चल के जाके एक बड़ी सी चप्पी देने लगा हूँ, ठीक है ना? Because I love this guy. Please stay tuned to On the Mic. Leave a like, leave a comment, leave a subscribe. Follow Please us. do subscribe to his podcast channel। और ये जो है मैं अपने व्लॉग के भी नीचे लिंक दूंगा पॉडकास्ट का। ये अब मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, और आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें यार, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने पहले ज़रार वाली पॉडकास्ट देखी, सारी देखी, बहुत नाइस कंटेंट है। Thank you. प्लीज डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल प्लीज, फॉर मी, लव यू। Thank you. Nothing left to say except वो 3 loves जो मैं हर पॉडकास्ट के एंड पे आपको कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, keep it tight. Keep it tight. ये Keep मेरा it स्लोगन है. And stay tuned. We got a lot more coming. Thank you, bro. लव यू।